محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا، کہ ان کی قوم نے کون سا بدفعلی کا کام کیا اور ان پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آیا اور قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ محترم ناظرین، ہم اس واقعہ کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کے باپ کا نام ہاران تھا اور حضرت ابراہیم کے بھائی کے لڑکے یعنی بھتیجے تھے۔ ابراہیم، ہاران، ناہوریہ تینوں بھائی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ہاران وہی شخص ہیں جنہوں نے ہاران شہر کی بنیاد ڈالی اور اس کو آباد کیا، لیکن یہ بات ضعیف ہے اور اہل کتاب کی تاریخ کے مخالف ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاقے سے ان کے حکم اور اجازت کے ساتھ جلا وطن ہو کر صدوم شہر میں آباد ہو گئے تھے، اور یہ علاقہ آباد کئی بستیوں پر مشتمل تھا، لیکن اس کے باشندے لوگوں میں سب سے زیادہ فاجر، فاسق اور بدترین کافر لوگ تھے، اور سیرت و کردار میں تمام دنیا سے بدتر تھے۔ راہ گیروں کو لوٹتے، اپنی مجالس و محافل میں سرعام بری حرکتیں کرتے تھے، بری اور کوئی برائی کرنے سے باز نہ آتے تھے، اور انہوں نے دنیا میں ایک ایسا گناہ ایجاد جاری کیا کہ اولاد آدم میں اس سے پہلے وہاں کسی کا خیال تک نہ گیا تھا، اور وہ لڑکوں سے برائی کرنا اور عورتیں جو اللہ نے اس کام کے لیے پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا اور ان فحاشی اور منکرات سے روکا اور حرکتوں سے ان کو منع کیا، لیکن وہ بجائے ماننے کے اپنی سرکشی اور گمراہی پر درم ہو گئے اور اپنے کفر و فسق پر برابر عمل پیرا رہے۔ محترم ناظرین، پھر اللہ نے بھی ان پر وہ عذاب نازل کیا جو واپس نہیں ہو سکتا تھا، اور ایسا عذاب پہلے کسی پر نہ آیا تھا، اور عذاب کا آنا ان کے وہم و خیال میں بھی نہ تھا، اور اللہ نے اس عذاب کے ساتھ ان کو جہاں والوں میں عبرت اور مثال بنا کر رکھ دیا جس سے لوگ نصیحت پکڑیں۔ اس وجہ سے اللہ عز و جل نے ان کے قصے کو اپنی کتاب مقدس میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ اعراف میں فرمایا، اور یاد کرو لوط کو جب اس نے اپنی قوم کو کہا، کیا تم ایسی برائی کرتے ہو جس کی طرف جہاں والوں میں سے کسی نے سبقت نہیں کی؟ تم ایسے لوگ ہو جو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، بلکہ تم حد سے نکلنے والی قوم ہو۔ لیکن اور اس قوم کا جواب اور کچھ نہ تھا، کہنے لگے ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ پاک بنتے ہیں۔ پھر ہم نے لوط کو اور ان کے اہل کو نجات دی، سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کا عذاب برسا دیا۔ دیکھ مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ اور سورۃ ہود میں اللہ عز و جل نے فرمایا، اور ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کے بعد انہوں نے بھی سلام کیا۔ ابھی کچھ وقفہ نہ ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کی طرف نہیں جاتے، ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط کی طرف ان کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی، ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا، ہائے مجھے بچہ ہوگا، جبکہ میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر تو خدا کی رحمت اور برکتیں ہیں، اور وہ تعریف کے لائق اور بزرگ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری مل گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، اس بات کو جاننے دو تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے، اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلے گا۔ اور جب ہمارے فرشتے
लूत के पास आए और उनके आने से गमनाक और तंग दिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। और लूत की कौम के लोग उनके पास बेतहाशा दौड़ते हुए आए और पहले ही वो शनि फेल किया करते थे। लूत ने कहा, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए पाक हैं, तो खुदा से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रुसवा ना करो। क्या तुम में कोई भी शाइस्ता मर्द नहीं है? वो बोले, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बेटियों में हमें हाजत नहीं और हमारे घर जाए इन लड़कों से तुम खूब जानते हो। लूत ने कहा, हाय काश मुझे तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। फरिश्तों ने कहा, लूत हम तुम्हारे परवरदिगार के फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज तुम तक ना पहुंच सकेंगे। आप अपने अहल को लेकर रात के कुछ हिस्से में चल पड़े और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे, मगर तुम्हारी बीवी जो आफत उन पर आने वाली है वो इस पर भी पड़ेगी। और वादे का वक्त सुबह है और क्या सुबह कुछ दूर है। तो जब हमारे आज़ाब का हुक्म आया तो हमने इस बस्ती को उलट करता हो बाला कर दिया, उन पर पत्थर की मूसलाधार कनकरियां बरसाईं जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान लगे हुए थे, और वो बस्ती उन जालिमों से कुछ दूर नहीं। और सूरत हजर में अल्लाह ने फरमाया, और उनको इब्राहीम के मेहमानों को अहवाल सुना दो। जब वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो सलाम किया, तो इब्राहीम और उनके अहल ने कहा, हमें तो तुमसे डर लगता है। मेहमानों ने कहा, डरिए नहीं, हम आपको एक दानिशमंद लड़के की खुशखबरी देते हैं। कहा कि हम आपको सच्ची खुशखबरी देते हैं, आप मायूस ना हो। इब्राहीम ने कहा कि खुदा की रहमत से मायूस होना सिर्फ गुमराहों का काम है। फिर कहने लगे, ए फरिश्तों तुम्हें और क्या काम है? कहने लगे, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि इन पर आज़ाब बरसाएं, सिवाय लूत के घर वालों के हम उन तमाम को निजात देंगे, मगर उनकी बीवी इसलिए हमने पीछे रह जाना मुकर्रर कर दिया है। फिर जब फरिश्ते लूत के घर गए तो लूत ने कहा, क्या तुम अजनबी लोग हो? वो बोले, हम आपके पास वो चीज़ लाए हैं जिसमें लोग शक करते थे, यानी आज़ाब खुदाबंदी, और आपके पास यकीनी बात लाए हैं और हम सच कहते हैं। तो आप रात के कुछ हिस्से में अपने घर वालों को ले निकले और खुद उनके पीछे चले। और सूरत शौरा में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहत फरमाने को बयान फरमाया। कौम लूत ने पैगंबरों को जुटलाया। जब उनसे उनके भाई लूत ने कहा, तुम खुदा से क्यों नहीं डरते? मैं तो तुम्हारे लिए ईमानदार पैगंबर हूँ, तो खुदा से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं तुमसे इसका बदला नहीं मांगता, मेरा बदला रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। क्या तुम जहान वालों में से लड़कों पर माइल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे लिए जो तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? हकीकत ये है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। कहने लगे, ऐ लूत, इस नसीहत बाजी से अगर तुम बाज ना आए तो शहर बदर कर दिए जाओगे। लूत ने कहा, क्या कि मैं तुम्हारे काम से सख्त बेजार हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझको और मेरे घर वालों को इनके कामों के इंजाम से निजात दे। तो हमने उसको और उसके घर वालों को सबको निजात दी, मगर एक बुढ़िया पीछे रह जाने वालों में से हो गई। फिर हमने औरों को हलाक कर दिया और उन पर आज़ाब का मींह बरसाया। सो जो मींह उन डराए गए लोगों पर बरसा इंतहाई बुरा था। बेशक इसमें निशानी है और अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब और मेहरबान है। और अल्लाह ताला ने उसी कौम लूत का जिक्र सूरत नमल में भी फरमाया अल्लाह ताला ने, और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो जबकि तुम इसको बुरा देखते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लिज्जत के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत ये है कि तुम अहमक लोग हो। तो उनकी कौम का सिर्फ ये जवाब कहना था, लूत के घर वालों को शहर से निकाल दो, ये लोग पाक बनते हैं। फिर हमने उसको और उसके अहल को निजात दी, सिवाय उसकी बीवी के। हमने उसको पीछे रह जाने वालों में से मुकर्रर कर दिया था, और हमने उन पर आज़ाब का मींह बरसाया।
डराए गए लोगों पर ये बुरा मी था। इस तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सूरत अनकबूत में इब्राहीम और लूत के वाक़े को इकट्ठा बयान फरमाया है। फरमाया, और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुम अजीब बेहयाई के मर्तकब हो, तुमसे पहले अहले जहां में किसी ने ऐसा काम नहीं किया। तुम शहवत को पूरा करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो और मुसाफिरों की रहज़ानी करते हो। तुम अपनी मजलसों में नापसंदीदा काम करते हो। उनकी कौम के लोग जो अब मैं बोले, अगर तो सच्चों में से है तो हम पर आज़ाब ले आ। तो लूत ने अपने रब की बारगाह में इल्तिजा की और कहा, ऐ परवरदिगार, इन मुफसद लोगों के मुकाबले में मुझे नुसरत अतायत फरमा। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास खुशखबरी लाए तो कहने लगे, इस बस्ती के लोगों को हम हलाक करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के रहने वाले जालिम। इब्राहीम ने कहा कि इसमें लूत भी है। कहने लगे, जो लोग यहाँ हैं हमें सब का मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचाएंगे, सिवाय उनकी बीवी के वो पीछे रह जाने वालों में होगी। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो उनसे नाखुश और तंग दिल हुए। फरिश्तों ने कहा, कुछ खौफ और रंज न कीजिए, हम आपको और आपके घर वालों को बचा लेंगे, मगर आपकी बीवी पीछे रह जाने वालों में होगी। हम इस बस्ती वालों पर आसमान से अजाब का टकराव नाजिल करने वाले हैं, क्योंकि ये फस्क को फजूर करते हैं और हमने समझने वालों के लिए इस बस्ती से एक खुली निशानी छोड़ दी है। लूत अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की तरफ बुलाया और कभी अफ़आल और गलीज़ हरकतों से उनको रोका, जिनका भी आयतों में तज़किरा हुआ है, तो उन्होंने हज़रत लूत की बात को ठुकरा दिया और ईमान ना लाए, हत्ता कि इनमें से एक शख्स भी राह रास्त पर ना आया। और जिन बातों से उनको रोका गया उनसे भी बाज ना आए, बल्कि अपनी हालत पर डटे रहे और अपनी सरकशी और गुमराही के गड्ढे से निकलने की परवाह न की, बल्कि सबसे बढ़कर ये किया कि अपने खैर खा अपने पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम को ही अपने देश से जिला वतन करने की ठान ली और उनको अपने दरमियान हकीर व कमज़ोर गर्दना और उनका मजाक उड़ाया। और जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाते तो उन बेअक्लों का एक ही जवाब होता, निकाल दो लूत के घर वालों को, ये पाक बनते हैं। और फिर तरह तरह से उनको सताया, बुराई की ताकि ये निकल कर चले जाएं, और ये महज इनका अनाद बुग़्ज़ और कुफर था। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने पैगंबर की लाज रखी और उनको उम्दगी और पासगी और इज्जत शराफत के साथ इनकी अहल समेत वहाँ से निकाल लिया, सिवाय इनकी बीवी के। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हमेशा के लिए खैर बात कह दिया। और फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस पूरे इलाके को हमेशा के लिए ठट्ठे मारता बदबूदार समुंदर बना दिया, जो हकीकत में इन लूतियों पर आग भड़क रही है और गर्मी ढक रही है, और इसका पानी आज तक इंतहाई खारा कड़वा है। और इस कौम लूत ने अपने पैगंबर को देश से निकाल देने की धमकी इस वक्त दी जबकि पैगंबर ने उनको नई इजाद करदा बेहोश वो फैश हरकत से रोका, जिसकी तरफ पूरी दुनिया में इससे पहले कभी भी किसी ने इरादा न किया था। फिर अल्लाह ने भी उनको पूरे रोए ज़मीन के लिए एक मिसाल और इबरत का नमूना बना दिया। और वो सिर्फ इस पर बस नहीं करते थे, बल्कि राहगीरों को लूटते, दोस्तों के साथ क़यादत करते और अपनी मजालिस व महफिल में दौरान गुफ्तगू अजीब अजीब बुरी हरकतें करते और कुछ हया व शर्म न करते। हत्ता कि अगर किसी को पेट में कुछ हुआ महसूस होती तो तवाज़ खुद जानकर जोर से आवाज़ के साथ हवा निकालते और अपने हमनशीनों का कुछ भी लिहाज ना करते और ना उसको बुरा समझते। इसके अलावा अक्सर बेशतर मजालिस में बड़ी बुरी हरकतों का अर्तकाब करते थे और फिर भी कुछ नापसंदीदगी का इजहार तक न होता था और किसी वैज़ की परवाह न करते और किसी अकल वाले की नसीहत का लिहाज करते और उन हरकतों में जानवरों की तरह हो चुके थे। इनसे भी कहीं बदतर और फिलहाल अपने गुनाहों से बाज आने का कोई ख्याल न था, गुज़श्ता बुराइयों पर कोई अफसोस न था और ना ही आइंदा अपनी हरकतों से बाज आने का कोई इरादा था। फिर अल्लाह ने भी इसके मुताबिक बड़े ज़ोरदार अजाब से उनको भूचाल में डाल दिया, बल्कि ये अजाब भी उनकी मांग थी। उन्होंने खुद पैगंबर से कहा था, अगर तू सच्चों में से है तो हम पर अजाब ले आ। तो जिस दर्दनाक अजाब से अल्लाह ने उनको अब तक बचा रखा था खुद ही उसकी फरमाइश कर दी। तो ऐसे मौके पर उनके पैगंबर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने बड़ी बेबसियों
बेकसी के आलिम खुदाए जुल जलाल के आगे हाथ फैला दिए और रब्बुल आलमीन से इल्तिजा की है मेरी मदद फरमा और मुफसिद कौम से मुझे निजात फरमा। अल्लाह जलाल को सख्त गैरत आई और शदीद गज़ब आया और फिर अपने कासिद पैगम्बर की फरियाद कबूल की और उनकी मुराद पूरी की और अपने फरिश्तों को भेजा। वो पहले इब्राहिम के यहाँ गए और उनको अक्लमंद लड़के की पैदाइश की खबरी दी, फिर उनको कौम लूत के मुतल्लिक दर्दनाक आज़ाब की खबर दी। फरमान बारी है, इब्राहिम ने कहा ए फरिश्तों तुम्हारा और क्या काम है? क्या हम मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि हम उन पर कंकर के पत्थर बरसाएं जो तेरे परवरदिगार की तरफ से निशान ज़दा है, हद से गुजरने वालों के लिए है। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो से हमें सबक लेना चाहिए। हमें कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे अल्लाह ताला को बहुत गुस्सा आए और अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाए और अल्लाह ताला हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए। आमीन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।